ابلیس کی داستان وہ عزازیل جو شیطان بن گیا۔ یہ کہانی زمانے کے آغاز کی ہے، اس وقت کی جب زمین پر انسانی قدم نہیں پڑے تھے۔ یہ اس بلند ہستی کی کہانی ہے جسے عزازیل کہا جاتا تھا، جس کے رتبے کو غرور نے تباہ کر دیا۔ ایک، زمین پر جان قوم اور عزازیل کا ادے۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے زمین پر ایک قوم آباد تھی جسے جان کہا جاتا تھا۔ قرآن کی آیت کے مطابق ان سے پہلے جان کو بید ہونے والی آگ سے بنایا گیا تھا۔ جان قوم نے لمبے عرصے تک عبادت کی، مگر وقت کے ساتھ وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے اور ظلم، فساد اور بغاوت میں مبتلا ہو گئے۔ پیغمبروں کی قتل، انہوں نے اپنے پاس بھیجے گئے عامر ابن امر جیسے پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے ان کے فساد کو روکنے کے لیے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں کچھ مومن جن بھی شامل تھے، جن میں سے ایک ہستی عزازیل تھی۔ عزازیل جو تب صرف جنات میں سے تھا، عبادت اور علم میں اتنا آگے تھا کہ اسے فرشتوں کے درمیان بلند مقام حاصل ہوا۔ اس نے فرشتوں کے لشکر کی رہنمائی کی اور جان قوم کے خلاف انصاف کے لیے جنگ لڑی۔ یہ جنگ جیتی گئی اور زمین کو فساد سے پاک کر دیا گیا۔ عزازیل کی شان، جنوں کا حاکم، جیت کے بعد زمین جنوں کو دی گئی اور اللہ نے عزازیل کو جنوں اور فرشتوں کے ایک گروہ کا حاکم، لیڈر بنا دیا۔ علم کا رہبر، وہ فرشتوں کو بھی علم گیان سکھایا کرتا تھا، جس سے اس کا رتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو گیا۔ اس کا پہلا نام عزازیل تھا، جس کا چہرہ فرشتوں کی طرح چمکدار اور خوبصورت تھا۔ آسمانی سفر، اپنی خلوص والی عبادت کی وجہ سے اسے آسمانوں میں بلند کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر آسمان میں 300 سال رہا، عبادت جاری رکھی اور اس کا رتبہ یہاں تک کہ جنت تک جا پہنچا، جہاں وہ بھی 300 سال رہا۔ عزازیل اللہ کے نزدیک مقرر ترین بندوں میں سے تھا۔ وہ دھرتی اور آسمان دونوں جگہ موجود ہو سکتا تھا۔ دو، تکبر کی شروعات اور لوح محفوظ کا راز۔ ابلیس کے پتن کی شروعات اس کے گہرے علم اور بلند مقام کے کارن پیدا ہوئے تکبر ایگو پرائڈ سے ہوئی۔ لوح محفوظ، فرشتوں نے لوح محفوظ، وہ تختی جس پر کائنات کی ہر بات لکھی ہے، میں لکھا دیکھا کہ اللہ کا ایک قریبی بندہ اس کے غضب کا شکار ہو کر نکالا جائے گا۔ عزازیل کا غرور، فرشتے گئے اور عزازیل سے دعا کرنے کو کہا۔ عزازیل نے دعا کی کہ یہ مصیبت پر نہ آئے، مگر اپنے دل میں اس نے سوچا یہ مصیبت نہ میرے لیے ہے نہ تمہارے لیے۔ اس کی غلط فہمی یہ تھی کہ اس کا رتبہ اسے اس سزا سے محفوظ رکھے گا۔ وہ تکبر میں اتنا غرق تھا کہ یہ خیال ہی نہیں کر سکا کہ یہ لکھاوٹ اسی کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ جو دلوں کے راز جانتا ہے، عزازیل کے چھپے ہوئے خیالات کو فرشتوں پر ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں سبق ملے کہ عبادت پر بھروسہ کرنا اور تکبر کرنا منع ہے۔ 3، آدم کی تخلیق اور بغاوت کا اعلان۔ پھر وہ وقت آیا جس نے عزازیل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ خلیفہ کا اعلان، اللہ نے فرشتوں کو بتایا میں دھرتی پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا وہاں ایسے کو بسائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ عزازیل کی سوچ، عزازیل نے سنا کہ یہ نئی مخلوق سوکھی سڑی ہوئی مٹی خنخناتے سڑے ہوئے گارے سے بنائی جائے گی تو اس کے غرور نے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا میں آگ سے بنا ہوں اور آگ نیچے سے بلند ہے، اس لیے میں اس کمزور مخلوق سے زیادہ حقدار ہوں۔ دھرتی اب بھی میری ہے۔ آدم کی شکل، جب آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق ہوا تو ابلیس عزازیل اس کے گرد گھوما، اس کے منہ سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ یہ مخلوق بہت کمزور ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا میں یہ کبھی قبول نہیں کروں گا کہ یہ بے بس مخلوق دھرتی پر حکومت کرے۔ 4، سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا جنم۔ آخری امتحان کا وقت آیا جس نے عزازیل کو ہمیشہ کے لیے ابلیس بنا دیا۔ اللہ کا حکم، آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو۔ نافرمانی، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے کیونکہ یہ سجدہ صرف اللہ کے حکم کی اطاعت تھی۔ مگر عزازیل نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ بحث اور لعنت، اللہ نے فرمایا اے ابلیس کیا بات ہے کہ تو نے اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ اس نے غرور سے جواب دیا میں اس انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا جو تو نے بدبودار سوکھی مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے اور میری لعنت تجھ پر ہے قیامت کے دن تک۔ اس طرح عزازیل والا ہمیشہ کے لیے ابلیس ناامید مایوس بن گیا جس نے اپنی خوبصورت شکل اور رتبہ کھو دیا۔ 5، قیامت تک کی مہلت اور انسانیت سے نفرت۔ اپنی تباہی یقینی جاننے کے بعد ابلیس نے ایک آخری التجا کی، مہلت کی درخواست، میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دی۔ بغاوت کی قسم ابلیس نے اعلان کیا کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور تو دیکھنا کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور ملامت کردہ نکل جا،
जो भी तेरा साथ देगा मैं कसम खाता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुमसे भर दूंगा। इब्लीस ने इंसानियत से गहरी नफरत रखी और अपनी हार का बदला लेने के लिए धोखे और जाल बिछाने की कसम खाई। ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है। इल्म, रुतबा और इबादत सब बेकार हैं अगर दिल में तकब्बुर आ जाए। इब्लीस का रुतबा जन्नत से जहन्नुम तक का सफर उसकी एक गलत सोच का नतीजा था। ये कहानी शैतान की पहली और सबसे बड़ी कामयाबी थी। आदम और हव्वा को धोखा और जन्नत से निष्कासन। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने की इजाजत दी और उन्हें हर नेमत से नवाजा। एक, जन्नत में आजादी और एक इम्तिहान। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, जन्नत में जहाँ चाहो आजादी से खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के पास मत जाना। ये दरख्त अल्लाह की तरफ से आदम और हव्वा के लिए इम्तिहान था, ताकि ये देखा जाए कि वे अल्लाह के हुक्म की कितनी पाबंदी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इम्तिहान के एक हिस्से के तौर पर इब्लीस को भी जन्नत में मौजूद रहने की इजाजत थी, हालांकि उसे निकाला जा चुका था। दो, शैतान का पहला हमला, धोखा। इब्लीस जो इंसानों से नफरत की कसम खा चुका था, उसने उन्हें गुमराह करने के लिए अपना पहला जाल बिछाया। वो दोनों के पास आया और कसम खाकर धोखे की बातें करने लगा। इब्लीस ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया ताकि एक, तुम फरिश्ते न बन जाओ, दो, या तुम हमेशा के लिए यहाँ जन्नत में न रह जाओ। उसने कसम खाते हुए कहा, मैं तुम्हें सच्ची सलाह देने वालों में से हूँ। इब्लीस ने ये जताया कि दरख्त खाने से उन्हें खुद हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी और वे मजबूत फरिश्तों की तरह बन जाएंगे। 3, हव्वा और आदम का फैसला। एक, हव्वा का गुमराह होना। शैतान पहले हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके कान में फंसाने वाली बातें डाली। आखिरकार हव्वा ने दरख्त से एक फल खा लिया। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो वो आदम अलैहिस्सलाम के पास गईं। 2, आदम का भूलना। हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने खाया और मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप भी खा लो। आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से किया गया अपना वादा भूल गए थे। चूंकि इंसान जल्दी करने वाला है, उन्होंने भी दरख्त से खा लिया। 4, शर्मिंदगी और तौबा। लिबास का उतरना। जैसे ही फल उनके गले से उतरा, उनके कपड़े टुकड़ा होकर गिर गए और उनकी शर्मगाहें खुल गईं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। खुद को ढांपना। उन्होंने फौरन जन्नत में मौजूद बयान के पत्तों से अपने आप को ढांकने की कोशिश की। अल्लाह ने उन्हें पुकारा और उनसे पूछा कि उन्होंने हुक्म की नाफरमानी क्यों की। आदम और हव्वा ने अपनी गलती कबूल की और अल्लाह से माफी मांगी। 5, धरती पर निष्कासन, सजा और मौका। अल्लाह ने उन सब पर सजा यानी जन्नत से निकाले जाने का हुक्म जारी किया। अल्लाह ने फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम में से कुछ एक दूसरे के दुश्मन होंगे। धरती पर तुम्हारे लिए रहने की जगह और एक मुकर्ररा वक्त तक गुजारा होगा। इस तरह आदम, हव्वा और इब्लीस तीनों को जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। जहाँ ये एक सजा थी, वहीं ये इंसानों को खलीफा बनाने की अल्लाह की योजना का अगला हिस्सा भी था। जमीन इंसानों के लिए आजमाइश की जगह बन गई, जहाँ इब्लीस हमेशा उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस वाक़े ने साबित किया कि शैतान अपना बदला लेने के लिए हर तरह के धोखे और झूठी कस्मों का इस्तेमाल करेगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि इब्लीस ने इंसानों को गुमराह करने के लिए कौन-कौन से अहम तरीके अपनाए हैं? जी बिल्कुल। इब्लीस शैतान की कसम कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करेगा, ये एक निरंतर जंग है। कुरान और हदीस की रोशनी में इब्लीस इंसानों को भटकाने के लिए कई तरह के जाल और तरीके वसवसा इस्तेमाल करता है। यहाँ कुछ अहम तरीके की स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं जिनके जरिए शैतान इंसानों को गुमराह करता है। शैतान के गुमराह करने के 5 अहम तरीके वसावस। शैतान अक्सर लोगों पर मंजर, सिचुएशन और इरादे इंटेंशन दोनों स्तरों पर हमला करता है। 1, तकब्बुर और खुद को बड़ा समझना, द ट्रैप ऑफ प्राइड। ये इब्लीस का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार था जिसने उसे खुद तबाह किया। तरीका, शैतान इंसानों को ये महसूस कराता है कि वे अपनी इबादत, दौलत या इल्म की वजह से दूसरों से बेहतर हैं। वह उन्हें अपनी नेकियां गिनने और दूसरों की कमियां देखने पर मजबूर करता है। नतीजा, ये तकब्बुर इंसान को अल्लाह के सामने झुकने और गलती कबूल करने से रोकता है। ये वही गुरूर था जिसके कारण इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार किया था। 2, शक पैदा करना और ईमान को कमजोर करना, डाउट और कंफ्यूजन। शैतान सबसे पहले इंसान की ईमान की बुनियाद पर हमला करता है। तरीका, वो अल्लाह, क़यामत, जन्नत, जहन्नम या कुरान के हुक्मों के बारे में शक पैदा करता है। मिसाल के तौर पर वो इंसान के दिल में ये ख्याल डाल सकता है, क्या अल्लाह सच में माफ कर देगा? या क्या ये हुक्म आज के ज़माने के लिए सही है? नतीजा, शक इंसान को मज़हबी फराइज़ जैसे नमाज, रोज़ा को तर्क करने या टालने की तरफ ले जाता है, जिससे दिल और दिमाग में बेकरारी पैदा होती है।
3 तस्वीफ तालवीफ माइनस टाल-मटोल की आदत प्रोक्रेस्टिनेशन। ये शैतान का सबसे आम और रोजमर्रा का तरीका है। तरीका जब इंसान कोई नेक काम जैसे नमाज पढ़ना, तौबा करना, सदका देना करना चाहता है तो शैतान दिल में कहता है अभी नहीं, बाद में कर लेना, अभी बहुत वक्त है। वो इंसान को ये गलत यकीन दिलाता है कि वो बाद में तौबा कर सकता है या नेक काम कर सकता है। नतीजा नेक काम करते रहते हैं और इंसान गफलत नेग्लिजेंस की नींद में चला जाता है, यहाँ तक कि मौत का वक्त आ जाता है और उसे तौबा का मौका नहीं मिलता। 4 गुस्सा और जज्बातों पर काबू खोना, रेज एंड इमोशनल कंट्रोल। गुस्सा इंसान को अंधा कर देता है और ये शैतान को पूरा मौका देता है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया गुस्सा शैतान की तरफ से है। तरीका शैतान गुस्से को भड़काता है ताकि इंसान नाज़िबा अल्फाज कहे, रिश्ते तोड़े या गलत फैसले ले। गुस्से की हालत में इंसान जल्दबाजी में वो काम कर बैठता है जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। नतीजा गुस्सा इंसान को जुल्म करने पर उकसाता है जो जान कौम की तबाही का भी सबब था। 5 डर, खौफ और मायूसी, डिस्पेयर और फियर। शैतान इंसान को दो तरह के डर में मुब्तला करता है। दुनियावी डर वो इंसान को गरीबी या मुस्तकबिल फ्यूचर में नुकसान होने का डर दिखाता है ताकि वो अल्लाह की राह में खर्च सदका करने से डरने लगे या हलाल और हराम के दरमियान तमीज न करे। मायूसी गलती करने के बाद शैतान इंसान के दिल में ये ख्याल डालता है तुम इतने बुरे हो कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये मायूसी इंसान को तौबा करने से रोकती है जबकि अल्लाह ने फरमाया है कि उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ये वो रास्ते हैं जिनसे इब्लीस सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं से, जैसा कि उसने कसम खाई थी, इंसानों पर हमला करता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन शैतानी वसवसों से कैसे बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, चूंकि शैतान इब्लीस एक मजबूत दुश्मन है जो कयामत तक हमें गुमराह करने की कोशिश करेगा। इस्लाम में इससे बचने के लिए बहुत स्पष्ट और मजबूत हिदायतें दी गई हैं। यहाँ शैतानी वसवसों, बुरी फुसफुसाहटों से बचने के 5 सबसे अहम तरीके दिए गए हैं। शैतानी वसवसों से बचने के 5 मजबूत तरीके। 1 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। शैतान के हमले का सबसे सीधा और पहला जवाब यही है। तरीका जैसे ही दिल या दिमाग में कोई बुरा ख्याल, शक, गुस्सा या गलत इरादा पैदा हो, फौरन अल्लाह से शैतान के शर से पनाह मांगे। अर्जी में कहें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अहमियत कुरान में हुक्म दिया गया है जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगा करो। सूरह अन-नहल 16 से कहानी है। ये किसी भी नेक काम की शुरुआत के लिए जरूरी है। 2 तौबा और इस्तिग़फ़ार में जल्दी करना। शैतान चाहता है कि आप गलती करने के बाद मायूस हो जाएं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि फौरन लौटाओ। तरीका जब कोई गलती हो जाए तो देर न करें, फौरन तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे। इस्तिग़फ़ार अहमियत शैतान इंसान को ये कहकर गुमराह करता है कि माफी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह कहता है कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। सूरह अज़मर 45-53। तौबा शैतान की उम्मीद को तोड़ देती है। 3 अल्लाह का ज़िक्र, रिमेम्बरेंस और कुरान की तिलावत। शैतान की ताकत अल्लाह के ज़िक्रियात के सामने कमजोर पड़ जाती है। तरीका वज़ू को बरकरार रखें, अपनी जुबान को दुआओं, तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और कुरान की तिलावत से तर रखें। खास तौर पर सूरह नास पढ़ें जो वसवसों से बचाने के लिए नाज़िल हुई थी। अहमियत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया शैतान इंसान के दिल पर अपना मुंह रखे रहता है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है और जब वो गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है। 4 इल्म हासिल करना और नेक सोहबत चुनना। जहालत इग्नोरेंस शैतान का पसंदीदा मैदान है और बुरा दोस्त का मददगार। तरीका इल्म मज़हब का सही इल्म हासिल करें ताकि आप हलाल और हराम में फर्क कर सकें और शैतान के शक वाले वसवसों जैसे क़यामत पर शक को पहचान सकें। सोहबत ऐसे लोगों का साथ चुनें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं और नेक कामों में आपकी मदद करें। बुरे और गाफिल लोगों की सोहबत से बचें क्योंकि शैतान भीड़ में ज्यादा ताकतवर हो जाता है। 5 नमाज में खुशू, कंसंट्रेशन और गुस्से पर काबू। नमाज सबसे बड़ी ढाल है और गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी। तरीका नमाज अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें और उनमें खुशू, दिल और दिमाग की हाजिरी पर तवज्जो दें। गुस्सा जब गुस्सा आए तो फौरन खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं और वजू कर लें क्योंकि वजू आग को बुझाता है और गुस्सा शैतानी आग से पैदा होता है।
ان طریقوں کو اپنا کر ایک مومن شیطان کے خلاف اپنی حفاظت کو مضبوط کر سکتا ہے۔